हाय गाइस, माय नेम इज़ रूपांशी लालगे एंड टुडेज जीके सीरीज का ये वाला वीडियो है अबाउट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस. सो एज आई ऑलवेज से, अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर जीके आता है, फॉलो दिस सीरीज एंड आई एम ट्राइंग टू कीप ऑल द वीडियोज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प सो दैट आप लोग ऑन द गो भी अगर ये वीडियो देख लेते हो, खाना खाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, एग्जाम सेंटर जाते वक्त, तभी भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी. एंड आई माई एंटायर इंटेंशन इज़ कि एक क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में हेल्प करता है टू हेल्प एंड रिकॉल इन शॉर्ट टाइम, तो आपका वो बचा हुआ टाइम इन्वेस्ट हो सकता है इन सम अदर क्वेश्चन वेर यू कैन take advantage of. So let's get started with some MCQs and I'll try to keep it as quick as possible. Okay. So the very first question is, who has recently won the 2021 Booker Prize for Fiction? Okay. If you know, pause करके आप comment भी कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं, but I am trying to make it fast. His name is Damon Galgut. He won the prestigious Booker Prize for Fiction with the name The Promise. Okay. So हम इसे याद रख सकते हैं कि Damon ने promise किया. Damn promise. The Damn Promise. So you can remember this. A novel about one white family reckoning with South Africa's racist history. So it is based on some racism. And here is a picture. I hope that it will help you remember in the examination. Right? Name the former Indian cricketer who has been appointed the head coach of Team India. I think ये काफी easy है. Rahul Dravid. Which of the following is said to become the first state or union territory to achieve complete vaccination coverage of its eligible population? Okay, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है. ठीक है, बड़ी बात है. वैक्सीनेटेड 99.2% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन विथ बोथ डोजेस. तो जितनी एलिजिबल थी उतनी हो गई है. ठीक है, ये हमने इमेज से याद रख लिया कि हाँ, यहाँ पर सारा वैक्सीन पहुंच चुका है. Which team lifted their maiden T20 World Cup title? Of course, this is common, but for the people who are not the avid, or they are not fond of it, for them, Australia. So under Aaron Finch lifted their first ICC Men's T20 World Cup trophy against New Zealand. तो कई बार runner up भी पूछ लेते हैं, so we should know Australia and the New Zealand. So here is the image, तो आपको याद रहेगा map. Dash was declared as the word of the year for 2021 by Oxford Dictionary. This is related to COVID, but the answer is wax. So इसमें हम confuse हो सकते हैं, इसीलिए I have also inserted this image which will help you recall कि Oxford English Dictionary का word जो है वो है wax. Okay. Which country recently became the world's biggest cryptocurrency miner? That's USA. What is the rank of India among 116 countries in the Global Hunger Index 2021? Okay, यहाँ पर हम दो चीजें याद रखेंगे. एक तो हमारी रैंक क्या है और टोटल कंट्रीज कितनी थी. 101 is India's rank and here you can see in 2020 Global Hunger Index, India ranked 94th out of 107 countries with sufficient data to calculate 2020 GHI scores. With a score of 27.2, India has a level of hunger that is serious. Okay. What is the position of India on the Henley Passport Index? It's 90. Okay. Henley Passport. पास हो जाते हैं तो 90% अच्छे से ऊपर आते हैं तो हम बोलते हैं हम पास हो गए. सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर दिस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स. दैट्स 90. विच कंपनी क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन सिंगल रॉकेट? सो द आंसर इज SpaceX, of course. So here is an image which will help you remember and recall the things well. Who won men's single Australian Open 2021? It's Novak Djokovic. Okay, sorry for the pronunciation. Image is here. So Australian Open men's single 2021 is Novak. Which is the first state of India to present a paperless budget? अब ये एक बहुत important question बन जाता है because India's first paperless budget अगर किसी ने present किया है तो the state is, if you know, comment down. And it's Uttar Pradesh.
ग्रेट. The rover of NASA successfully landed at Jezero crater of Mars. ठीक है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं. Try to add an image, but if you know, do comment down. अगर आपको पहले से आंसर आता है तो आप कमेंट करते जाइए. वील नो हाउ इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस. सो द आंसर इज परसिवियरेंस रोवर. अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन हो जाता है कि रोवर क्या था, क्रेटर क्या था, तो हमें याद होना चाहिए जेजोरो क्रेटर ऑफ मार्स एंड परसिवियरेंस रोवर. सो हम PR से याद रख सकते हैं. PR वी से पब्लिक रिलेशंस, सो PR परसिवियरेंस रोवर. Here is some things. The Mars helicopter is technology demonstration hitching a ride on Perseverance rover, and the main job is it will seek signs of ancient life and collect rock and soil samples for possible return to Earth. Okay, and इसने लैंडिंग कब की थी? फरवरी में की थी ऑन जेजोरो क्रेटर. लॉन्च कब हुआ था? जुलाई 30th 2020 में. मतलब काफ़ी टाइम लग गया, ऐसे 6, 7, 8 महीने कुछ लग गए हैं. फॉर केप कार्निवल एयर फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा. इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, मार्स परसिवियरेंस रोवर याद होना चाहिए. विच इंडियन सिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड बाय UNFAO. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने कल ही ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी और उसमें हमने यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखा था. इफ़ यू नो व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNFAO, प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड आई होप दैट जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्हें ट्रिक भी याद होगी हमने कैसे याद किया था. तो अभी हमें बताना है कि इंडियन सिटी जिसको ट्री सिटी कहा गया है, एंड दैट्स हैदराबाद. तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? हम इसे याद रख सकते हैं बाय हरियाली, हरा भरा. तो हरियाली, हैदराबाद, ट्री सिटी. ओके. हु इज अपॉइंटेड एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर SA बोबडे. ना पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहले SA बोबडे थे, 48 थे ना. पहले 47th पर SA बोबडे थे. 48th जो अभी अपॉइंट हुए हैं, हिज नेम इज NV रामना. सो इट्स रामना सर. विच मूवी won the Oscars Award, Academy Award 2021 for the best movie. ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी तो पता ही होना चाहिए. अगर आप ये नहीं जानकर जा रहे हैं तो इट्स अ मिस्टेक. इट्स नोमैडलैंड. ओके. This was the big winner at 2021 Oscars, taking home the most number of awards. ठीक है, तो नोमैडलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी हो जाती है जिसमें 3 अवार्ड्स थे, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस. तो अगर हम ऐसे याद रखें कि मूवी भी अच्छी थी, डायरेक्टर भी अच्छा था और जो एक्ट्रेस थी वो भी बहुत अच्छी थी इसमें. एंड हर नेम इज फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड. डायरेक्टर इज कोल और व्हाटएवर इज झाओ. ठीक है, तो नाम मुझे नहीं समझ में आ रहे, बट यू कैन रीड, रिमेंबर, कैसे भी निमोनिक्स बनाओ और याद कर लो. तीनों चीज नोमैडलैंड को मिली है. दिस इज द इमेज. ओके. हु इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू सर्व एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द US? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो इंडियन पर्सन का जिक्र है और ये बहुत बड़ी चीज है बिकॉज इट इज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ US. सो कैन यू इमेजिन वी आर इवन देयर. तो हर नेम इज वनीता गुप्ता. ओके. हु हैज टेकन चार्ज एज द 24th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर सुशील अरोरा? अगेन दिस इज द नेक्स्ट कमिंग ईयर इज इलेक्शन ईयर. सो इलेक्शन से इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. तो नंबर भी याद रख लो, 24th. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24th चीफ इलेक्शन कमीशन था. एंड आफ्टर सुशील अरोरा, सो हु लेफ्ट इज सुशील अरोरा, हु इज कमिंग अप इज सुशील चंद्रा. वेरी गुड. अरोरा के बाद चंद्र. ठीक है. हु हैज won the आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड एट 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड? आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड, इट्स ड्रेक. ओके. डेकेड, ड्रेक. Dash of Indian origin has become the youngest chess grandmaster at the age of 12 years. Can you believe it? He has become the youngest chess grandmaster, and that too the person from the child from India, Indian origin. So his name is Abhimanyu Mishra. तो नाम आप याद रख सकते हो. This is his image. Which international airport of India has won the Airport Council International Director General's रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर? बेसिकली इंडिया में एक ऐसा एयरपोर्ट
जो बेहतरीन है, एक्सीलेंट है, उसे बहुत सारी चीज़ों का लंबा सा नाम है अवार्ड का, लेकिन मेन है एक्सीलेंस, रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर अवार्ड। तो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो वी कैन सी इट्स नेम इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। The highest award in sports, that is राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इज रीनेम्ड एज। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये हाईएस्ट था, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज हाईएस्ट, एंड आई बिलीव कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि इट हैज़ बिन रीनेम्ड एज ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। कैसे याद रख सकते हैं? अगर आपको ऑलरेडी याद है तो नो प्रॉब्लम, बट जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, फॉर देम बहुत ध्यान से अगर आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपको हाईएस्ट अवार्ड मिलेगा। अगर आप बहुत ध्यान नहीं लगाओगे तो हाईएस्ट अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इससे तीनों चीज़ याद हो गई। हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स इज ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऑल राइट, इफ यू आर लाइकिंग दीज ट्रिक्स, प्लीज keep on liking and keep on commenting if you know answers. Which two teams has been announced as the two new teams of the IPL? ठीक है, तो ये आई गेस पता होना चाहिए, बिकॉज IPL से आसपास की न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर एग्जाम में नहीं भी आती हैं तो भी वी विल गेट हेल्प फ्रॉम दीज क्वेश्चंस इन वैट, GDPI एंड ऑल दोज थिंग्स, स्पेशली फॉर द वंस हु राइट क्रिकेट एज देयर हॉबी और इंटरेस्ट। सो दैट इज़ अहमदाबाद एंड लखनऊ। ठीक है, आप अगर कैट एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए अहमदाबाद और लखनऊ का इंपॉर्टेंस बहुत होगा, बिकॉज वी ऑल नो आई एम अहमदाबाद एंड आई एम लखनऊ आर गुड बी स्कूल्स, टॉप बी स्कूल्स। तो यू कैन रिमेंबर इन दैट वे कि IPL अहमदाबाद एंड लखनऊ। ठीक है, AL। संदीप बख्शी वॉज रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। कैसे याद रखेंगे? बख्शी एंड बड़ौदा, BA. You can remember this, easy for us to remember by this way. Which app has got a green signal from National Payments Corporation of India to launch its UPI payment system of Indian users? I believe काफ़ी easy है, it's WhatsApp. Still बेसिक कभी कभी गलत हो जाते हैं, इसलिए टू बी 100% श्योर इन एग्जामिनेशन, एक बार आंखों के सामने से अगर क्वेश्चन निकल जाता है, आंसर निकल जाता है, तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट। Which bank has recently got approval to set up a non-financial subsidiary? It's South Indian Bank. South Indian Bank has got an approval to set up a non-financial subsidiary. Okay, it's a new thing, big thing. Which among the following is the World Entrepreneur of the Year 2020? ठीक है, वर्ल्ड का एंटरप्रेन्योर की हमें बात कर रहे हैं। सो इट्स किरण मजूमदार शॉ। ओके, एंटरप्रेन्योर शॉ। Name the first Indian businessman who found place in the cover story of Forbes magazine. That's again a big thing. Indian businessman, cover story. It's Azim Hasham Premji. You can see the image. इससे recall हो जाएंगे कि हमने भाई हमारे Indian businessman है, बड़ी बात है, and he is on the cover story. Which of the following has become the first company in India to cross 1 billion transactions on UPI? Again, फिनटेक सेक्टर, UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स। सो द आंसर इज फ़ोन पे। कैसे याद रख सकते हैं? फ़ोन पे 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस देखो, फ़ोन पे 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस देखो, फर्स्ट कंपनी है। फ़ोन पे देखो जल्दी से, तो ऐसे हमने याद कर लिया है। ओके, Who among the following won the 2021 CK Prahlad Award for Global Business Sustainability Leadership? उल्टा क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये जो अवार्ड है इसका नाम क्या है? इट्स CK प्रहलाद अवार्ड। ओके, तो ये किसे मिला है? माइक्रोसॉफ्ट को मिला है। ऑलराइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज द नेटिकेट scheme which allows a passenger to fly without ever visiting a reservation counter has been introduced by Indian Airlines. I know कि image पहले आ गई, but it's all right. The main thing is कि Indian Airlines सोचो कितनी तरक्की कर ली है। They are giving a service where a passenger can fly without even visiting a reservation counter. इसमें सब कुछ नेट से हो जाएगा, नेट टिकट। If you see the word, it's net plus ticket. So I hope these questions must be helpful. If you have liked the video,
Do like it, comment down below, and I hope that these questions help you in the examination. And lastly, I just want to say कि अगर आपको कोई कोर्स एनरोल करना है, जीके के PDFs, मॉड्यूल्स, MCQs कहीं से आपको consolidated material चाहिए, तो we are there for you. We also have a lot of mocks which you can practice. We also have live and recorded video sessions for you for all the examinations. So if you're interested, do check out the website, do contact us, and we'll give you all the details. And till then, all the best for your examination. I know IFT is tomorrow, so all the very best. Do well. Best of luck.